Okay, now let us discuss some physical quantities which is required to study the circular motion. First such quantity is radius vector. So, what is radius vector? It is simply the line joining the center of the circle to the position of particle. Let us say if this particle is performing a circular motion and this A is the position of the particle, and if I draw the line from the center of this circle to the position of particle, so this line is called what? Radius vector. So नाम से ही लग रहा है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है. सो रेडियस वेक्टर इज सिंपली द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल. So this radius vector, it is a vector quantity, no doubt. It is a vector quantity. It is denoted by r bar. Okay, it is denoted by r bar. Magnitude of radius vector is always constant. मैग्नीट्यूड ऑफ रेडियस वेक्टर ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, बट इसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज होती रहेगी बिकॉज इस पार्टिकल की जो पोजीशन है वो भी चेंज होती रहेगी. फिलहाल ये पार्टिकल यहाँ पे है, कुछ टाइम टी के बाद दिस पार्टिकल विल कम एट दिस पॉइंट बी. तो ये डायरेक्शन जो है पोजीशन वेक्टर की चेंज हो गई है. हाँ, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड जो है ये एज इट इज़ है. तो ये है रेडियस वेक्टर. अब now let us see some more quantities which is used to describe the circular motion. Like in linear motion we have velocity, we have displacement, we have acceleration. In the similar way we have certain quantities to define the circular motion as well. So here we'll do comparative study. Here I have written linear motion and here is a circular motion. So in the linear motion we have a linear displacement. And what is linear displacement? It is the distance covered in a given time or in a unit time. So it is denoted by S. What is the SI unit of linear displacement? It is meter. Okay. And what is distance? It might be the longest path. Okay, it might be the longest path. For example, let us say here a particle is moving from this point to this point, A point to B point. Let us say this distance is r from O and this distance is r. Okay. So if someone asks you what is the displacement of the particle, so you will write displacement is the shortest path between 2 points. Shortest path is this path, this is the longest path. So it will be r plus r, it will be twice r. This will be the displacement. And if someone asks you what is the distance travel, so you will write distance will be this path. This is half circle, so it will be pi r. So the way we have a linear displacement in linear motion, in circular motion we have angular displacement. Suppose a particle is performing a circular motion and this particle move from this point A to this point B in time t. Let us say this particle has covered distance del s. Why del s? छोटा, because मैं इसको छोटा अज्यूम कर रहा हूँ, it is very small. तो ये अपने सेंटर पर डेफिनेटली एक एंगल ट्रेस करेगा. लेट से इट इज़ स्मॉल एंगल डेल थीटा, ठीक है. और ये है रेडियस वेक्टर, ये है रेडियस वेक्टर. तो व्हेन अ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग ए सर्कुलर मोशन, अ रेडियस वेक्टर मेक्स एन एंगल थीटा एट द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड दिस एंगल इज कॉल्ड व्हाट? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल. Clear है? So simply you will define angular displacement is the angle made by a radius vector at the center of the circle. And how you will write this? See, you can write this angular displacement, it can be written as arc AB divided by radius. So angular displacement, it is denoted by theta. We use a theta notation for it. Arc is what? It is del s, arc AB divided by this radius vector r. And let's say अगर ये एंगल बहुत छोटा है तो इसको भी हम लिखेंगे इट इज डेल थीटा. और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है. ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है. तो इन वेक्टर फॉर्म वी कैन राइट del theta bar, this is equals to del s bar divided by r. ठीक है. और SI यूनिट क्या होगा? व्हाट विल बी द SI यूनिट? तो
SI यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये होगा रेडियन, बिकॉज एंगल को हम कैसे मेजर करते हैं, ऑब्वियस बात है एंगल को रेडियन में मेजर करते हैं। इसके डायमेंशन क्या होंगे, सो डायमेंशन इसके सिंपली होंगे m0 l0 t0, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगी, ठीक है। सिमिलरली लीनियर मोशन के डायमेंशन क्या होंगे, SI यूनिट तो तुमने मीटर बोला इसका, तो इसके डायमेंशन क्या होंगे, इसके डायमेंशन क्या होंगे, तो डिस्टेंस को हम मीटर में मेजर करते हैं तो इसके डायमेंशन हो जाएंगे m0 l1 t0। सिंपली डिस्प्लेसमेंट को कैसे मेजर करोगे आप, सिंपली इट इज़ अ डिस्टेंस, वो अलग बात है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। नाउ ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है मोर ओवर इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, हमने लिखा है इसको वेक्टर फॉर्म में। अब इसकी डायरेक्शन क्या होती है, तो डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमारे पास सिंपली एक राइट हैंड रूल है। अगर हम ये जो सर्कुलर मोशन है पार्टिकल का, अगर हम फिंगर को सेंस ऑफ रोटेशन ऑफ पार्टिकल की डायरेक्शन में कर्ल करें और थंब को स्ट्रेच करें तो थंब देगा हमको डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यानी यहाँ पे मान लो कि एक पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट हो रहा है, तो इफ़ आई कर्ल माई फिंगर इन द सेंस ऑफ रोटेशन ऑफ पार्टिकल एंड स्ट्रेच माई थंब, स्ट्रेच थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं इसी डायग्राम को हॉरिजेंटल प्लेन में बनाऊँ तो अगर ये एंटी क्लॉकवाइज मोशन है, एंटी क्लॉकवाइज मोशन, तो थंब की डायरेक्शन होगी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, यानी इट विल बी अपवर्ड। तो मान लो अगर ये कोई हॉरिजेंटल प्लेन में रखा है, तो अगर ये कोई हॉरिजेंटल प्लेन में है और ये पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट हो रहा है, तो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है वो अपवर्ड होगी और अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी, ठीक है। लेट अस सी अनदर टर्म। सो जो दूसरी टर्म है वो है लीनियर वेलोसिटी, ठीक है। सो सर्कुलर मोशन में वी हैव अ एंगुलर वेलोसिटी। सो व्हाट इज लीनियर वेलोसिटी, हाउ यू डिफाइन इट? So linear velocity, it is nothing but it is rate of change of displacement with respect to time. This is how you define the linear velocity. What is the SI unit? SI unit is meter per second, displacement का unit meter है और time second, ठीक है। ये एक vector quantity है, it is a vector quantity. And what is the direction of this velocity? What is the direction of this linear velocity? In the direction of displacement of the particle. जिस डायरेक्शन में पार्टिकल डिस्प्लेस होगा उसी डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी होगी। तो जैसे लीनियर मोशन में हमारे पास है लीनियर वेलोसिटी, इन द सिमिलर वे इन अ सर्कुलर मोशन वी हैव अ एंगुलर वेलोसिटी। सो हाउ यू विल डिफाइन एंगुलर वेलोसिटी? सो इट इज डिनोटेड बाय ओमेगा बार। सो यू विल राइट एंगुलर वेलोसिटी इज नथिंग बट इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। आसान है। व्हाट विल बी द SI यूनिट? सो SI यूनिट विल बी, अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो यूनिट होता था वो क्या था? रेडियन डिवाइडेड बाय दिस टाइम, दिस सेकेंड। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, एंगुलर वेलोसिटी जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और इसके डायमेंशन, व्हाट विल बी द डायमेंशन? डायमेंशन क्या रहेंगे इसके? सो इट विल बी m0 l0 t-1, क्योंकि यहाँ पे मास भी नहीं है, लेंथ भी नहीं है, क्योंकि इसको एंगल में मेजर करते हैं, जहाँ टाइम है यहाँ पे, तो ये आ जाएगा टाइम ना, बस दैट यू कैन अंडरस्टैंड आई गेस। और यहाँ पे अगर डायमेंशन लिखने गए तो इसके डायमेंशन क्या हो जाएंगे? व्हाट विल बी द डायमेंशन? इट विल बी, यहाँ पे क्या मास है क्या नहीं है, सो इट विल बी m0 l1 t-1, ठीक है। अब ये जो d थीटा बाई dt है इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। इट इज़ थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम t और dt, ठीक है। इनिशियल टाइम तो ज़ीरो ही होता है, सो वी कैन राइट इट इज़ t। नाउ लेट अस सी व्हाट इज़ द डायरेक्शन, हाउ यू विल डिफाइन द डायरेक्शन, हाउ यू विल डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ दिस एंगुलर वेलोसिटी। सपोज एक पार्टिकल है जो कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में एंटी क्लॉकवाइज सेंस में सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। सो अगेन यू विल यूज़ द राइट हैंड रूल।
सो फिंगर को कर्व करेंगे इन द सेंस ऑफ रोटेशन ऑफ द पार्टिकल और थंब को स्ट्रेच करेंगे। जिस डायरेक्शन में थंब होगा उस डायरेक्शन में एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। तो यहाँ पे अगर मैं फिंगर को कर्ल करूँ इन द डायरेक्शन ऑफ सेंस ऑफ रोटेशन ऑफ पार्टिकल और थंब करूँ, स्ट्रेच को थंब करूँ, तो ये आएगी अपवर्ड डायरेक्शन। मैं हॉरिजेंटल प्लेन में इसको मान रहा हूँ, ठीक है। तो ये है ओमेगा बार की डायरेक्शन, इट इज़ अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। नाउ इसके बाद जो क्वांटिटी है वो है एंगुलर एक्सेलरेशन। नाउ और थर्ड क्वांटिटी इज व्हाट, एंगुलर एक्सेलरेशन। जैसे लीनियर मोशन में हमारे पास है लीनियर एक्सेलरेशन, ऐसे ही हमारे पास सर्कुलर मोशन में है व्हाट, एंगुलर एक्सेलरेशन। यहाँ पे है हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन। नाउ हाउ यू विल डिफाइन एंगुलर एक्सेलरेशन? इसके लिए वी यूज़ अल्फा, इट इज़ डिनोटेड बाय अल्फा। तो जैसे लीनियर एक्सेलरेशन क्या होता है, व्हाट इज़ लीनियर एक्सेलरेशन? तो हम डिफाइन करते हैं लीनियर एक्सेलरेशन इज़ नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यही क्या होता है लीनियर एक्सेलरेशन। एसआई यूनिट क्या होता है इसका? सो एसआई यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या ये एक वेक्टर क्वांटिटी है? तो यस, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी होता है। डायमेंशन अगर हम लिखने जाए तो डायमेंशन क्या होंगे इसके, ये होगा m0 और वेलोसिटी के डायमेंशन क्या होते हैं L1 t-1 और ये एक t और ऐड हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा t-2। ये हो गया डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन। सिमिलर वे अगर सर्कुलर मोशन में हमको एक्सेलरेशन की बात करनी है तो वी विल यूज़ दिस एंगुलर एक्सेलरेशन। अब ये एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा सी? सो व्हाट विल बी एंगुलर एक्सेलरेशन? सो सिंपली इट विल बी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये होगा क्या, एंगुलर एक्सेलरेशन। हाउ यू विल डिफाइन इट? व्हाट इज एंगुलर एक्सेलरेशन? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। दिस इज हाउ वी डिफाइन एंगुलर एक्सेलरेशन. So what is the SI unit now? What is the SI unit of the angular acceleration? SI unit क्या रहेगा इसका? SI unit will be radian per second square. ठीक है, आई होप ओमेगा का तुमको पता है, रेडियन पर सेकेंड, और ये एक टाइम, तो ये क्या हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसके डायमेंशन, now you can tell me the dimension. So m0 l0 और t कितना हो जाएगा t-2। और इसको एक और तरीके से हम लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल्स टू ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम, t फाइनल माइनस t इनिशियल। ठीक है, अब as it is a vector quantity, again we have a right hand rule. With the help of right hand rule we can determine the direction of angular acceleration. Suppose a particle performing a circular motion in a horizontal plane in anticlockwise sense. So curl your finger in the direction of sense of rotation of particle, stretch your thumb, it will give you direction of angular velocity. So यहाँ पे रहेगी sorry angular acceleration, तो ये है direction of angular acceleration. So ये भी along the axis of rotation ही होती है, लेकिन अगर पार्टिकल की स्पीड इंक्रीज हो रही है, ठीक है, अगर स्पीड इंक्रीज हो रही है, अगर ये स्पीड इंक्रीज होती है तो अल्फ़ा की डायरेक्शन अलोंग दी ओमेगा बार रहेगी, यानी एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन और अल्फ़ा की डायरेक्शन सेम रहेगी। बट मान लो कि अगर स्पीड डिक्रीजिंग है, एंगुलर स्पीड जो है वो पार्टिकल की डिक्रीज़ है, तो ये ओमेगा बार की डायरेक्शन होगी, ठीक है, और जो अल्फ़ा की डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड होगी, जिसको हम बोलते हैं कि ये क्या है, इट इज़ रिटार्डेशन. So these are some physical quantities which is very necessary to describe the circular motion. I hope you have understood this. In the next lecture we will understand some more concepts.